Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter Cash Book, Chapter 5 for Intermediate First Year Students for Telangana State Board of Intermediate Education. Let us have a problem. Question number 11 and the page number is 155. So here the page number is 155. Page number 155. Question number 11. So prepare 3-column cash book of Ravi Traders from the following particulars. The transactions are given for the year 2018 for the month of September. Here are some of the transactions. We are required to prepare 3-column cash book, and the format for 3-column cash book is date, particulars, LF which stands for ledger folio, DA discount allowed, cash rupees, bank rupees, date, particulars, LF which stands for ledger folio, DR which means discount received, cash rupees, bank rupees, and the name of the book is 3-column cash book. Towards extreme left we will be writing DR debit, towards extreme right we will be writing CR credit. What are the rules for cash book? If cash is coming into the business, अगर पैसा आ रहा तो कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे. If cash is going from the business, अगर पैसा जा रहा तो कैश बुक के क्रेडिट में लिखेंगे. So here are the transactions. 2018 September 1st, cash balance 15,000, bank balance credit 25,000. इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है. So cash balance will be recorded on debit side as to balance brought down, whereas bank balance credit will be recorded on credit side as by balance brought down. The transaction is done on September 1st, 2018. So the date will be taken here as 2018 September 1st. Here also the date will be taken as 2018 September 1st. तो कैश बैलेंस जो है उसको आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक बैलेंस जो है उसको आप बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में खुद स्पेसिफाई करा हुआ है कि बैंक बैलेंस क्रेडिट है. सो कैश बैलेंस वी हैव 15,000, बैंक बैलेंस क्रेडिट वी हैव 25,000. तो इस तरफ डेबिट में आप कैश बैलेंस लिखेंगे 15,000, इस तरफ बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड लिखेंगे 25,000. नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन September 4, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भास्कर 3,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,000. इसका मतलब अपने को भास्कर से कैश आ रहा 3,900 आ रहा, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,000, मतलब वो बंदे से 4,000 आना था, वो बंदा 3,900 रुपये देके अकाउंट सेटल करवा ले रहा, मतलब बाकी के जो 100 रुपये है वो डिस्काउंट अलाउड है. एज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो डेबिट में लिखेंगे आप September 4. किसके पास से आ रहे हैं आपको पैसे? भास्कर के पास से आ रहे. सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू भास्कर अकाउंट, टू भास्कर अकाउंट. कितने पैसे आ रहे हैं आपको? 3,900. सो द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एज 3,900. 3,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,000, मतलब बाकी के जो 100 रुपये है वो आप डिस्काउंट दे रहे. नेक्स्ट, आफ्टर September 4 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन September 6, गुड्स सोल्ड टू प्रकाश फॉर कैश. आप सामान बेच रहे, बदले में पैसा ले रहे. सो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज September 6 टू सेल्स 2,800. तो यहाँ पे लिखेंगे आप September 6 टू सेल्स 2,800. September 6 टू सेल्स अकाउंट, कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं आप? 2,800. सो द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एज 2,800. Next, after September 6 we have a transaction on September 7, interest paid 500 rupees. So when you are paying interest, cash is going from the business. September 7 by interest 500 will be recorded on credit side. तो यहाँ पे लिखेंगे आप September 7. September 7 क्या पे कर रहे हैं आप? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. By interest account, cash is going from the business, so it is recorded on credit side. कितना पैसा पे कर रहे हैं आप इंटरेस्ट के लिए? 500 रुपये पे कर रहे हैं. So 500 will be recorded in cash column. Next, after September 7 we have a transaction on September 10, received from Karthik Traders. Received का मतलब अपने को पैसे आ रहे, so it will be recorded on debit side as September 10 to Karthik Traders. तो यहाँ पे लिखेंगे आप September 10 to Karthik Traders. So here it will be recorded as to Karthik Traders account. तो अब यहाँ पे कार्तिक ट्रेडर्स के पास से आपको कैश 1,800 आ रहा, चेक 4,800 का आ रहा, डिस्काउंट अलाउड 400 है. सो ऑल दीज अमाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. कैश के कॉलम में लिखेंगे आप 1,800. सो आपको डिस्काउंट जो है वो 400 है, सो डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे आप 400 रुपीज़. कैश के कॉलम में आपको 1,800 आ रहे, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज 1,800. चेक जो आ रहा आपको वो 4,800 का आ रहा, सो 4,800 विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम. तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे आप 4,800. नेक्स्ट,
after September 10 we have a transaction after September 10 we have a transaction on September 14 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब आप अपना पैसा ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे. तो जब कैश और बैंक एक साथ आ जाता हम उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. तो सितंबर 14 की जो जनरल एंट्री है वो यहाँ वर्किंग नोट्स में लिखी हुई है. देखिए सितंबर 14 पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे. सो बैंक इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस. सो द जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000. सो कैश और बैंक जब एक साथ एक एंट्री में आ जाते हैं हम उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. एंड कॉन्ट्रा एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ 3 कॉलम कैश बुक. तो यहाँ पे बैंक का नाम डेबिट में लिखा हुआ है तो पोस्टिंग में ये क्रेडिट में लिखेंगे. कैश का नाम क्रेडिट में लिखा हुआ है तो पोस्टिंग में इसको हम डेबिट में लिखेंगे. सो सितंबर 14 विल बी रिकॉर्डेड एज ऑन क्रेडिट साइड एज वेल एज ऑन डेबिट साइड. तो आप इसको लिखेंगे आप सितंबर 14. बैंक वहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ था तो इस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट. उसके बाद यहाँ पे सितंबर 14 डेबिट में भी लिखेंगे आप सितंबर 14. कैश उस तरफ क्रेडिट में लिखा हुआ तो इस तरफ डेबिट में लिखा हुआ रहेगा टू कैश अकाउंट. अब इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसको पहचानने के लिए आप एलएफ में क्या लिखेंगे सी विच स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री. तो यहाँ पे नाम कैश लिखे तो जो अमाउंट 4000 है वो बैंक में लिखेंगे. इस तरफ में आप बाई बैंक लिखे तो एलएफ में कॉन्ट्रा एंट्री है, पहचानने के लिए क्या करेंगे सी लिखेंगे विच स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री. तो यहाँ पे नाम बैंक लिखे तो जो अमाउंट है 4000 वो कैश में लिखेंगे. नेक्स्ट आफ्टर सितंबर 14 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन सितंबर 16 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चैतन्य एंड पेमेंट मेड थ्रू पेटीएम 2500. आप सामान खरीद रहे, चैतन्य से खरीद रहे और उसकी जो कीमत है वो पेटीएम से अदा कर रहे. सो एज कैश इज गोइंग, एज यू आर पेइंग द अमाउंट, कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. किस लिए जा रहा पैसा, खरीदने से जा रहा. सो द डेट विल बी टेकन एज सितंबर 16. As you are purchasing goods, it will be recorded as by purchases. Date will be taken as September 16. Here you will be writing it as by purchases. और उसकी जो कीमत है आप पेटीएम से अदा कर रहे हैं by purchases account. So the amount will be recorded in bank column. तो आप जो सामान खरीद रहे पेटीएम से कितने का सामान खरीद के पैसे भर रहे हैं आप 2500. So 2500 will be recorded in bank column. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2500. Next, after September 16, we have a transaction on September 24. Issued check to Manohar. Issued का मतलब आप चेक दे रहे. So when you are giving check, amount will be going from the business. So it will be recorded on credit side. किसको दे रहे आप, मनोहर को दे रहे. So it will be recorded on credit side as September 24 by Manohar 2800. So here you will be writing it as September 24. September 24 by Manohar account. Here we will be writing it as by Manohar account. You are issuing a check of rupees 2800 and discount received is 200. So 200 will be recorded in discount received column and 2800 will be recorded in bank column. तो आपको 200 का डिस्काउंट मिल रहा और 2800 रुपये का आप चेक दे रहे. Now we have completed all the transactions which are given in the question. We now just need to balance the 3 column cash book. अभी आप 3 column cash book का सिर्फ बैलेंसिंग मतलब टोटल करेंगे. So let us do the total on debit side as well as on credit side of cash book, cash column first. So the total on debit side of cash column is 15,000 plus 3,000, 18,000, 18,000 plus 2,000, 20,000, 20,000 plus 1,000, 21,000 plus 900, 21,900 plus 800, 22,700 plus 800, 23,500. So the total on debit side of cash book is 23,500. तो इस तरफ लिखेंगे आप 23,500. Now we'll be doing the total for credit side of cash column and the total on credit side of cash column is 4,500. तो इस तरफ सिर्फ 4,500 है total. So the total on credit side of cash column is 4,500. तो अब ये दोनों में कौन सा टोटल ज़्यादा है, 23,500 is more than 4,500. So we'll be writing the total 23,500 on both the sides of cash column. तो 23,500 आप cash column के डेबिट में भी लिखेंगे, 23,500 आप cash column के क्रेडिट में भी लिखेंगे. 23,500 will be recorded on both the sides of cash column. अभी आप क्या करेंगे, विल बी सब्ट्रैक्टिंग 4,500 फ्रॉम 23,500. 500 minus 500 0. Subtracting 3,000 from 400 it becomes 1,000, it becomes 20,000. Again subtracting 1,000 from 20,000 the value is 19,000.
तो अब यहाँ पे जो आपको पैसे जो बच रहे वो कितने बच रहे, 19,000 बच रहे. इफ यू सब्ट्रैक्ट 4,500 फ्रॉम 23,500, हियर द आंसर इज 19,000. तब यहाँ पे ये जो 19,000 जो कम पड़ रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए डेबिट साइड आप कैश कॉलम में 23,500 लिखे, और जब आप काउंट कर रहे 23,500 है भी. क्रेडिट साइड में भी आप 23,500 लिखे, बट व्हेन यू आर काउंटिंग इट वी हैव ओनली 4,500. तो यहाँ पे शॉर्टेज है, कितने का शॉर्टेज है, 19,000 का शॉर्टेज है. सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज, इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज बाई बैलेंस कैरिड डाउन 19,000. तो इस तरफ लिखेंगे, और वहाँ पे जो डेट लिखेंगे आप वो सितंबर की लास्ट डेट लिखेंगे, एंड द लास्ट डे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज सितंबर 30. तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन. द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो जहाँ पे कैरी डाउन करे आप उसके अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन भी करेंगे. तो 19,000 जो कैश कॉलम में कैरी डाउन करे थे, द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट डाउन ऑन इट्स इमीडिएट नेक्स्ट डे. सितंबर 30 के बाद नेक्स्ट डे क्या आता, अक्टूबर 1st. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो इस तरफ लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ वी नीड टू बैलेंस the bank column. First we'll be doing the total on debit side of bank column. It is 4,800 plus 4,000, it is 8,800. तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड का टोटल क्या है, इट इज 8,800. नाउ विल बी डूइंग द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम का टोटल देखिए 25,000 प्लस 2,000, 25,000 प्लस 2,000, 27,000, 27,000 प्लस 2,000, 29,000, 29,000 प्लस 800, 29,800 प्लस 500, 30,300. सो द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इज 30,300. तो इस तरफ क्रेडिट का टोटल लिखेंगे आप 30,300. तो अब ये दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 30,300 इज मोर देन 8,800. सो विल बी राइटिंग द टोटल 30,300 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बैंक कॉलम. तो बैंक कॉलम के दोनों तरफ आप टोटल लिखेंगे 30,300. सो इस तरफ भी आप टोटल लिखेंगे 30,300. बैंक कॉलम के क्रेडिट में भी आप टोटल लिखेंगे 30,300. नाउ विल बी सब्ट्रैक्टिंग 8,800. विल बी सब्ट्रैक्टिंग 8,800 फ्रॉम 30,300. तब आप क्या करेंगे, ये 8,800 को 30,300 में से माइनस करेंगे. तो यहाँ पे 30,000 में से आप 8,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 22,000 बचते. फिर ये 300 में से आपको 800 सब्ट्रैक्ट करना है. वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 800 फ्रॉम 300. तो और 500 रुपये बचते. तो वो 500 रुपये 22,000 में से माइनस करिए, तो यहाँ पे आपको 21,500 रुपये बच रहे. सो हियर वी आर हैविंग ए शॉर्टेज ऑफ 21,500. सो द आंसर इज 21,500 फॉर बैंक कॉलम डेबिट साइड. तो यहाँ पे आप दोनों तरफ जो टोटल लिखे 30,300, 30,300, आप जब काउंट कर रहे हैं बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड वी हैव रिटन 30,300. When we count it, we have 30,300 here. But on debit side as well, we have recorded 30,300. But when we count it, we have only 8,800. तब इस बार जो पैसे कम पड़ रहे वो डेबिट साइड कम पड़ रहे, बैंक कॉलम के डेबिट साइड कम पड़ रहे. तो यहाँ पे कितने का शॉर्टेज है, वी आर हैविंग ए शॉर्टेज ऑफ 21,500 रुपीज़. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 21,500 रुपीज़. तो इस तरफ आप लिखेंगे 21,500 रुपीज़. तो इस बार आपको इस तरफ कम पड़ रहे, तो हियर द डेट विल बी टेकन एज सितंबर 30 एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन. तो इस तरफ लिखेंगे आप टू बैलेंस कैरिड डाउन. द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो यहाँ पे जो सितंबर 30 का कैरिड डाउन हुआ था, वो सेम अमाउंट क्या करेंगे आप, अपोजिट साइड इसका ब्रॉट डाउन भी करेंगे. So it will be brought down on its immediate next day. तो सितंबर 30 के बाद immediate next day क्या आती, अक्टूबर 1st. So अक्टूबर 1st के दिन इसको सेम अमाउंट को आप ब्रॉट डाउन करेंगे. So it will be recorded as by balance brought down. तो इस तरफ लिखेंगे आप by balance brought down. तो इस बार कैरी डाउन कौन से कॉलम में करें आप, बैंक कॉलम में करें. So it will be written on बैंक कॉलम. बैंक कॉलम में कितना कैरी डाउन करे थे, 21,500. So that same amount of 21,500 will be brought down here, 21,500. सो जब हम कैश की बैलेंसिंग करें, कैश में क्रेडिट साइड का टोटल कम था
तो यहाँ पे पैसे कम पड़े तो हम उसको बाई बैलेंस कैरी डाउन 19,000 क्रेडिट साइड लिखे, जिसको ब्रॉट डाउन हम अपोजिट साइड डेबिट में करें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000। जब आप बैंक की बैलेंसिंग करें तो इस बार आपको जो है ना डेबिट में पैसे कम पड़ रहे हैं, बैंक कॉलम में कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, 21,500। सो हियर वी हैव रिटन इट एज टू बैलेंस कैरी डाउन, जिसका ब्रॉट डाउन हम अपोजिट साइड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करें। तो यहाँ पे आपको दो कैरी डाउन है, कैश के लिए क्रेडिट में कैरी डाउन है, बैंक के लिए डेबिट में कैरी डाउन है। सिमिलरली इसके दो अपोजिट ब्रॉट डाउन है, ये जो कैश का कैरी डाउन क्रेडिट में करे हम, इसका ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड डेबिट में है। बैंक के लिए जो डेबिट में कैरी डाउन करे, इसका ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड क्रेडिट में है। Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. One share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.